Rahul Gandhi. Speaker, sir, thank you for allowing me to speak on this issue. The farmer is India's backbone. Whatever we have constructed, Please, order, please. whatever we have constructed, whatever we have been able. Please. What is the problem? Deputy Speaker, I am here. Please take question. I am here. Whatever has been achieved in this country, whatever has been constructed, whether it is IT, whether it is defense, all these structures sit on top of a foundation. That हिंदी में भी बोलूंगा, घबराइए मत. आप अपना देखिए ना. Everything has been built on a foundation that has been provided to us by the farmer. The farmer gave us the Green Revolution, and the Green Revolution happened because the farmer was given abundant credit and because the farmer was provided with the idea of MSP so that he could sell his crops. Don't make any comment. You allow me to run the house. If you want anything, if you don't like, you can go outside and sit there. No. Say when member speaking, you must be allowed to speak. No. Deputy Speaker, sir, you have to control them. Sir, this is unacceptable. This is unacceptable, sir. You have to control them. This is unacceptable. The Parliamentary Affairs Minister sitting here, he should control everybody. आपको चिंता क्यों है? आपके पीएम नहीं खड़े होंगे क्या? हम भी देखते हैं. Anyway, I'm sorry to say, Speaker, sir, Okay, all right. that on the matter of MSP and on the matter of agricultural credit, our government, the Achhe Din government, that's their name, not my name, so I take their permission to use it. The Achhe Din government has failed the country. I'd like to point out a little bit about the MSP and agricultural credit. In our time, UPA government's time, agricultural credit grew by 700%. It went up to 8 lakh crore rupees, and 6.5 crore farmers benefited from this. Our average increase in credit was an average 20% every year. I'm sad to say that the current government has only given an increase of 5%. Shame. Comparing MSP, the current government has allowed it to stagnate. This is the heart of agriculture. Our record is available to everyone. I'd like to take your permission to repeat our record. In wheat, we raised the MSP from 640 rupees to 1,400 rupees per quintal. In rice, we raised the MSP from 560 rupees to 1,310 rupees per quintal. In sugarcane, we raised the MSP from 73 rupees to 220 rupees per quintal. And what has the current regime done? What has the current regime done over the last year? I'd like to say, wheat has been raised by 50 rupees. Sugarcane has been raised by 10 rupees. And cotton has been raised by 50 rupees. As if that was not enough, our farmer struggles. What is the result? What is the result of this? You talk about defending the country. You talk about strengthening the country. What is the result of this? The result of this is that during our time, agriculture grew at 4.1%. In the previous NDA government, the India Shining government, your record was 2.6% agricultural growth rate every year. Your Prime Minister, during the campaign, spoke to the farmers and said that he will look after them. MSP is where it was. Agricultural credit has not been improved. And agricultural growth rate is 1%. Shame. How can you talk about strengthening this country if the foundation of this country is the farmer? Yes. How are you going to do that?
CEO came to me 2 days ago before our rally, and he said that he had gone to Mr. Gadkari. First, I'd like to praise Mr. Gadkari. He's not here, Gadkari, sorry. I'd like to praise him because he is the one minister here who speaks his heart and tells the truth. I'd like to praise him. और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि किसान को ना भगवान पे ना सरकार पे भरोसा करना चाहिए। और अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने अपना जो उनके दिल में था वो उन्होंने कह दिया। दिल की बात कही। मन की बात, दिल की बात। अभी कहता हूं, अब as if that was not enough, agricultural growth rate is stagnating, farmer doesn't get credit, MSP is where it was, and the weather lets the farmer down. ओला पड़ा, बारिश पड़ी और किसान का नुकसान हुआ। सबसे पहले मैं आपके प्रधानमंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं। छोटा सा देखिए, पहले एक्सपर्ट्स ने कहा, शांत हो जाओ। अरे आप एक्सपर्ट्स ने कहा, अरे सुनो, अरे सुन तो लो भाई। ये तो सुझाव दे रहे हैं, इसमें क्या होगा? हिंदुस्तान के सबसे बड़े एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स ने कहा कि 180 लाख करोड़ लाख हेक्टर पे नुकसान पहुंचा है। 14 स्टेट्स में नुकसान हुआ है। 40,000 करोड़ रुपए नुकसान हुआ है। उसके बाद आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 180, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं नहीं, बोलने दीजिए, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं नहीं, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो गलत है। मैं जानता हूं 106 लाख हेक्टेयर पर असर हुआ। उसके बाद आपकी एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री कहती है नहीं भैया, प्रधानमंत्री जी गलत कह रहे हैं, 80 लाख हेक्टेयर इफेक्टेड है। तो सबसे पहले आप हमें बताइए, एक्सपर्ट सही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं, या आपकी एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री सही कह रही है? तीनों सही कह रहे हैं। यही बीजेपी का तरीका है। यहाँ कुछ बोलो, वहां कुछ बोलो, वहां कुछ बोलो और फिर बोलो, तीनों एक ही बात कह रहे हैं। किसान को नुकसान हुआ। मैं आपको सुझाव देता हूं, ये कंफ्यूजन हो रहा है ना? कोई 106 कह रहा है, कोई 80, कोई 180 कह रहा है, कोई 80 कह रहा है। मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, प्रधानमंत्री जी को सुझाव दे रहा हूं, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी जाकर अपनी आंखों से देख लें? क्यों नहीं वो जाकर, जहां लोगों के दिल में दर्द है, जहां उनको मुश्किल हो रही है, क्यों नहीं वो जाकर वहां उनसे बात कर ले? प्रधानमंत्री को विदेश यात्रा से फुर्सत नहीं है। गेहूं मंडियों में पड़ा हुआ है, गेहूं मंडियों में पड़ा हुआ है, सरकार उठा नहीं रही है। किसान फर्टिलाइजर लेने जा रहा है, उसको आप फर्टिलाइजर नहीं दे रहे हो, उसको आप लाठी मार के भगा रहे हो। विदेश यात्रा, विदेश देखिए, विदेश की सैर। अच्छा सुनिए, स्वामीनाथन जी ने कहा, सैर। वेरी गुड। I will control. No, please. I will manage, please. आपने बोले किसी का देखिए, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आपकी जो सरकार है वो किसानों की मुश्किलों को बोलने दीजिए, किसानों की मुश्किलों को इग्नोर कर रही है और
मजदूरों की आवाज को नहीं सुनती है। आप लोगों की सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, वो सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। बड़े लोगों की सरकार है, कॉर्पोरेट सरकार, कॉर्पोरेट सरकार है ये। नहीं सुनिए सुनिए तो Deputy Speaker, sir, you must please control them. आपकी सरकार बड़े लोगों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है, वो हम समझते हैं। This is ridiculous. अरे आप बैठो, आपकी बारी आएगी, आप बैठ जाओ। दिल्ली में कितना जीता पड़ता है? No, अरे भाई, बैठो। What is this, sir? दोबारा माफी मांगना पड़ेगा। अरे बैठो। असली सच्चाई कड़वी लगती है। अब वो सूट का मामला तो खत्म हो गया है। नहीं वो सही है, वो अरे नहीं वो अरे बैठ जाओ, सच्चाई कड़वी लगती है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सच्चाई कड़वी लगती है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सच्चाई कड़वी लगती है। भैया 10 लाख का नहीं ये कोई तरीका है सर? ये कोई सर, ये कोई तरीका है? हाँ, otherwise you must pass picture against him. अब वो सूट का मामला तो खत्म हो गया। तो ये सच्चाई है और इस बात को आप भी मानते हैं, इसीलिए आप इतनी जोरों से चिल्ला रहे हैं कि किसान को आपकी सरकार, मजदूर को आपकी सरकार निगलेक्ट कर रही है। कमेंट्री बंद नहीं हो रही, आप बोलना क्या? अब सवाल उठता है कि आपके जो प्रधानमंत्री हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, मगर वो देश के हैं मगर आपके भी हैं। क्या आप कह रहे हो कि वो आपके नहीं हैं? क्या आपके नहीं है वो? मैंने गलत बोला, आपके नहीं है वो। देश के तो हैं मगर आपके नहीं है क्या? तो फिर क्यों चुप करा रहे हो मुझे? ठीक है, वो आपके प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। वो पॉलिटिकल कैलकुलेशन तो समझते हैं, चुनाव जीते हैं। तो मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा है और वो मैं देश से पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए 60% जनता एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। किसान मजदूर 67, आप मुझसे अच्छा जानते हैं 67, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। और आपके जो प्रधानमंत्री हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो पॉलिटिकल कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो मेरे दिमाग के सवाल उठ रहा है कि अगर वो पॉलिटिकल कैलकुलेशन समझते हैं तो वो 60% लोगों को क्यों गुस्सा कर रहे हैं? ये सवाल है। प्रैग्मेटिक व्यक्ति हैं, वो क्यों 60% लोगों को नाराज कर रहे हैं? और इसके बारे में मैं सोच रहा हूं कि इसका कारण क्या है। स्वामीनाथन जी ने कहा कि अंग्रेजी का कोट है तो अंग्रेजी में बोल देता हूं, फ्यूचर विल बिलोंग टू नेशंस विद ग्रेन्स नॉट गन्स। तो डिफेंस की बात होती है, मिसाइल्स की बात होती है, फाइटर प्लेन की बात होती है, और 60% जनता को आप भूल रहे हैं।
मैंने अपने आप से पूछा ये क्यों हो रहा है, और मेरे पास एक ही जवाब मिला। जवाब क्या है? जवाब क्या है कि कारगिल में जमीन की जो कीमत है, हिंदुस्तान के किसान की जमीन की जो कीमत है वो तेजी से बढ़ रही है, और आपके जो कॉर्पोरेट दोस्त हैं वो उस जमीन को चाहते हैं। और आप क्या कर रहे हो? एक तरफ से सुनिए, आप क्या कर रहे हो? एक तरफ से किसान को, मजदूर को आप कमजोर कर रहे हो, और उसके बाद जब वो कमजोर होगा, जब वो खड़ा नहीं होगा अपने पैरों पे, फिर आप उसको अपने ऑर्डिनेंस की कुल्हाड़ी मारोगे। इसीलिए आप 60% लोगों को इग्नोर कर रहे हो। मैडम प्लीज टेक नहीं बैठ जाइए माता जी बैठ जाइए। Have you got the permission? Why are you? You are a senior leader. You are a madam. But you are a senior leader. You have not got permission from me. How can you? No. How can you stand and speak without my permission? Please take your seat. Please, please. Without permission. प्रधानमंत्री जी को मैं एक और सुझाव देता हूं। वो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, बड़े लोगों की सरकार है, मगर देश में 60% किसान मजदूर है। उनको राजनीतिक फायदा होगा अगर वो अपनी साइड बदल दें। अगर वो जो वायदे किए हैं आप लोगों ने कॉर्पोरेट्स को, अगर आप लोग वो वायदे तोड़ोगे, हमें नुकसान होगा। आप बड़ी गलती कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप किसानों को, मजदूरों को चोट पहुंचा रहे हो, और आने वाले समय में वो आपको चोट पहुंचाएंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा शक्ति इस देश में किसान और मजदूर के पास है। आप गलत समझ रहे हो। आप सोच रहे हो जो बड़ी बड़ी गाड़ी चलाते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके नाम नहीं कहना चाहता हूं, आप सोचते हो कि उनकी है शक्ति देश में। ये गलत है। इस देश की शक्ति किसान के हाथों में है, मजदूर के हाथों में है। So I would like to conclude my intervention. Thank you very much.